So today we will discuss how to solve a numerical and find y bus with the help of graph. So let's consider a network. This is a network, and now we have to find out the y bus matrix for this network. I am first giving an example with this, then we will discuss for power system network. So first, when we have to convert this into graph theory, if you remember, first work is to remove all sources. So when we remove all the sources, your network will be reduced to this. So we can have node number 1, node number 2, and node number 3. So this network graph will be 1, 2, and 3. And we have to give 1, 2, 3, and 4. So we have drawn the graph for this. We have 3 buses and 4 branches. We have given each branch name 1, 2, 3, 4 and direction. So now first we have to find out what is A matrix. A matrix, that means incident matrix. So it will be 1, 2, 3. This is your bus number. And here you will be having your branch. Thank you. 1, 2, 3, and 4. 1, 1 means bus number 1 and branch number 1. So it is 1. Bus number 1, branch number 2, it is -1. Sorry, +1. Branch 3 not connected, branch 4 not connected. For node number 2, we have number 1, -1. Branch 2 not connected, branch 3 +1, and branch 4 +1. And similarly for bus number 3, we have bus 1, 0, 2 -1, 3 -1, and 4 -1. So this is how we will be finding the A matrix or incident matrix for the system. किसी को कोई confusion? No, sir. So this is how we have find it A matrix. Now we have to find out Y matrix. So to find out Y matrix, we will be having 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
these are branches and these are also branches. So branch 1, branch 2, branch 3 and branch 4. Branch 1 is having an admittance of 1 by 1. 1 and 2, that is 0, because there is no mutual coupling. If there is mutual coupling, then there will be mutual impedance of the network. If there is no mutual coupling, then it will be 0. 130, 140, 210, and branch 2 has admittance of 1 by R, 3040, 0, 0. Branch 3 has an admittance of 1 by 2, then 0, 0, 0, 0, and branch 4 has 1 by 2. This is how we will be finding Y bus. This is the main important part, how to find Y. Because on the basis of Y it will be decided. अगर Y सही बना लिया तो A तो जनरली सही होता ही है. किसी को कंफ्यूजन है इसमें? यस सर, एक बार दोबारा बता दो। हाँ, सर ये इसको जो आपने 1/r और 1/2 ये कैसे लिए सर, ये बताना। पहले तो ये सब जो दिए हुए आपको ये क्या है, ये R122 ये सब क्या है, इम्पीडेंस. तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दीज ऑल इनटू एडमिटेंस बिकॉज वी आर राइटिंग वाई बस मैट्रिक्स. तो ये हो गया 1/r, ये हो गया 1/1, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2. नाउ जो हमने बस नंबर दिया है 1 से 2 जो बस है वो है बस नंबर 1, यानी Y11 is 1/1. ब्रांच नंबर 2 हमने किसको दिया है, इसको. तो इसका जो एडमिटेंस है Y22 that will be 1/r. ब्रांच नंबर 3 is this 2 ohm. तो Y33 1/2. And similarly for this Y44 is 1/2. अब 1 और 1/2 Y12 आता है अगर इनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग होगी, इसके कारण इसमें कोई चेंज आ रहा होगा. पर क्योंकि यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, इसलिए ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0. We have only Y11, Y22, Y33 and Y44. So that's why we get Y equal to 11 is 1/1, 2 is Y22 is 1/r, Y33 is 1/2 and Y44 is 1/2 and all other remaining are 0. किसी को कंफ्यूजन इसमें? अब No, sir. so this is how we have finded Y, and we have also finded that is A. A is your 1100 minus 1 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 and minus 1. Now we have to give one bus as reference. One bus as a reference. तो 3 bus as reference. So bus number 3 is taken as reference. So your A will be reduced to 1100 minus 101 minus 1. Third row has been eliminated as we have considered bus number 3 as the reference node. So your A will be this. Now your final Y bus will be A
y at, a इंटू वाई इंटू at. a हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज दिस, y is this. तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट ay. तो ay is 1100 minus 1011 into y 1000 by r 00 1 by 2 0 1 by 2. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज, इसको इससे किया तो दैट इज वी गेट 1, इसको इससे किया दैट इज वी गेट 1 by r. रो 1 को इससे किया दैट इज 0, इसको इससे किया अगेन 0. देन सेकंड रो को इससे किया तो वी गेट -1, इसको इससे किया तो वी गेट 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हाँ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया. तो दिस इज a into y and now we have to find out a into y into at. That is 1 by r 0 minus 1 1 by 2 and 1 by 2, and a transpose will become 1 minus 1 1 0 1 1. सही है? नो सर, क्या गलती है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर. ए कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है? यस सर. इंसिडेंट मैट्रिक्स ए कैलकुलेट कर लिया, उसमें से ए भी कैलकुलेट किया था, ये कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स था, पर हमें एक को रेफरेंस मानना होता है तो हमने उसको हटा दिया. ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसको रेफरेंस मानो. मैंने ब्रश नंबर 3 को माना, आप चाहे 2 को मान सकते हो, आप चाहे 1 को मान सकते हो, गलत नहीं होगा. तो 1 2 रह गया क्योंकि बस नंबर 3 एज ए रेफरेंस था, उसको रिमूव कर दिया. नाउ योर फाइनल वाई बस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. फाइनल वाई बस विल बी a इंटू वाई इंटू ए ट्रांसपोज. तो इसके लिए मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया a इंटू वाई, ए मैट्रिक्स इंटू वाई मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया अगर याद हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड से मल्टीप्लाई और फोर्थ से मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0 इंटू 0 एंड 0 इंटू 0, तो फाइनली कितना आ गया 1. सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई आर आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 0. देन रो नंबर 2 को चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको किया इससे तो यू गेट -1, इसको इससे किया तो यू गेट 0, इसको इससे किया यू गेट 1 बाय 2, इसको इससे किया यू गेट 1 by 2. So that is your a into y. Now we will be finding a into y into a transpose. So that is a into y की वैल्यू रख दी और ये a ट्रांसपोज. अब a ट्रांसपोज सही है क्या? सर 3,2 पोजीशन पे 1 आएगा. हैं? तो 3,2 पोजीशन पे 1 आएगा. It will be 1 minus 1 1 0 0 1 and 0 1. This is your a ट्रांसपोज. a मैट्रिक्स था ये, इसका ट्रांसपोज किया 1 minus 1 1 0 0 1 and 0 1. तो ये आ गया. तो फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट क्या आ जाएगा?
Sir, R plus 1 upon R minus 1 minus 1 2. हाँ, 1 plus 1 upon r, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, 1 plus 1 upon r and Minus minus 1 2 minus 1 and this and will 2. be कितना होगा? 2. इसको किया -1 मल्टीप्लाई हो तो 1 हो गया, प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 2. तो दिस इज योर y bus matrix. This is how we will be finding y bus matrix with the help of this is known as singularity transformation. एग्जाम में आपकी ये चॉइस है कि अगर स्पेसिफाइड नहीं है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वाई बस विद द हेल्प ऑफ ओल्ड मेथड जो हमने पढ़ा था. पर अगर स्पेसिफाइड है तो हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. वी कैन नॉट हैव चॉइस. सिंगुलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ग्राफ थ्योरी से आ जाए, तो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग ए नेटवर्क. वाई और वाई बस में डिफरेंस क्या है? Y simply a impedance admittance matrix. बस ये अगर बात करूं तो इट इज ए ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स. ये ब्रांचेज हैं. तो ब्रांच 1 का इंपीडेंस, ब्रांच 2 का इंपीडेंस, ब्रांच 3 का एडमिटेंस और ब्रांच 4 का एडमिटेंस. अगर म्यूचुअल कपलिंग होती, ट्रांसफार्मर या कुछ लगा होता या म्यूचुअल कपलिंग होती, देन यू विल गेट impedance between 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4. बट क्योंकि ये नेटवर्क सिंपल है तो देयर विल बी नो म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन 1 and 2. दैट्स व्हाई इट इज 0. देन 1 3 इज आल्सो 0 and 1 4 इज आल्सो. तो दिस इज, अगर याद रखना है, नहीं कंफ्यूजन होता है, तो इट इज ए ब्रांच, वाई ब्रांच, इट इज ए ब्रांच एडमिटेंस मैट्रिक्स. है? और दिस इज योर वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. तो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग. अब एक न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं, दैट इज फॉर so this is the question. We have 4 bus system and these are the impedance and admittance which are given. The question is, first find y bus and second if branch
1 2 is not present. First is find y bus is branch 1 2 is not present. And what modification? Need to be done if branch 1 2 is added. So this is first we have to find out the y bus if branch 1 and 2 means branch between bus 1 and bus 2 is not present. That means this branch is not there in the network. And so first we have to find out the y bus with the help of this, and then we have to find out what is the modification required when we add y bus 1 2 in this network. तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है दैट इज, कोई बता सकता है क्या करते हैं सबसे पहले? एनीवन? सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला कन्वर्ट all impedance into एडमिटेंस. तो एडमिटेंस कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले 1 2 1 3 2 3 2 4 and 3 4. This will be G and this will be B. So it will become 2 1.666 1 and 2, and this will become -6 -3 -2 -3 and -6. कोई बता सकता है बी में माइनस क्यों आएगा? जी तो सारे पॉजिटिव थे, इसको 1/0.05 किया तो 2 आ गया, 0.10 किया तो 1 आ गया, सर जे से डिवाइड करेंगे तो सर जे अगर फिर से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ क्योंकि जाएगा. हमने ये बी लिखा है, तो जब हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स इज जे एक्स, तो जब हम इसको करेंगे माइनस तो इट विल बी -6 -3 -2 -3 and -6. पर अगर हम 0.15 को डिवाइड करते हैं तो ये -6 कैसे आया? How it is 2 - j6? R और x था, उसको जब हमने रेसिप्रोकेट किया तो इट इज 2 - 6. कोई बता सकता है क्यों हुआ ऐसा? अरे दिस इज R + jx, z इज R + jx. तो जब हम इसका y निकालते हैं तो इट इज y इज g + jb. कॉम्प्लेक्स का नंबर का जो क्वांटिटी है वो सीधे नहीं निकलती, इट विल बी y will be 1/r + jx. तो it will be r minus jx upon r square plus x square. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकेट करना है, सीधे सीधे नहीं करना है.
So it will be 2 minus j6, 1 minus j3, 0.6 minus j3, this and this. So this is the first step. If impedances are given, then we have to first convert all the impedance into admittance. यहाँ पर आपको R और X ही दिया हुआ है, that means there is no impedance with respect to ground. तो for this network, अगर हम this is the network when there is no branch between 1 and 2. So it will be a 4 cross 4 matrix. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y11 अगर किसी को याद हो तो that is all the sum of all the admittance connected at bus 1. So it is Y13. 1, 2 is there is no connection between 1 and 2, that means 0. 1, 3, 1 and 3 there is connection, so it will be minus Y13. 1, 4 is also 0. Y21 0. Y22 is the sum of all the admittance connected at 2. So it is Y24 plus Y34. Sorry, 23. And Y23 is minus Y23. And Y24 is minus Y24. Then Y31 is minus Y13. Y32 is minus Y23. Y33 is the sum of all the admittance at 3. So it is Y13 plus Y24 plus Y23. And Y34 is minus Y34. Y34 होना चाहिए ना यहाँ पे Y33 में Y33 is Y13, Y23 and Y34. And Y41, 4 और 1 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, that means 0. 4, 2, 4 और 2 के बीच में कनेक्शन है, that means minus Y24. Y43, that is minus Y34. And Y44 is all the admittance at bus 4. So it is Y34 plus Y24. So this will be Y bus matrix for this system. So this is आपके पास Y13, Y23 सबकी values है, वो रख दो. You will get your Y bus matrix. Now your B part is we have added वन एंड टू ब्रांच. इस ब्रांच को हमने ऐड कर दिया 1, 2, 3, 4. कोई बता सकता है which element will be affected? Which elements will be affected? सबसे पहले ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 में हमने ऐड किया है
that means y11 and y22 will be affected, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कनेक्ट हुआ है, तो बस नंबर 1 का इम्पीडेंस चेंज हुआ और बस नंबर 2 का इम्पीडेंस चेंज हुआ, तो दैट मीन्स बस नंबर 1 का एडमिटेंस और बस 22 यानी y11 एंड y22 विल बी चेंज्ड। अब क्योंकि 1 और 2 के बीच में कनेक्शन पहले नहीं था, वो भी चेंज हो गया, यानी y12 and y21 will be changed. So these are the 4 quantities which will be changed. So that means y11 जो पहले y13 था, that will become y13 plus y12, ये नया ऐड हो गया। Similarly y22 जो पहले y24 plus y23 था प्लस y12 उसमें नया ऐड हो जाएगा, and y21 and y12 will also change and that will become minus y12. So this is the change which happened due to addition of bus 1 and 2. अब एक और इसी में अगर हम कहें, if branch 2, 3 is removed, that means if branch 2 and 3 is removed from the network, what is the modified Y bus matrix? ये हमारा रिमेनिंग सिस्टम रह गया, तो क्योंकि हमने ब्रांच 2 and 3 को चेंज किया है, दैट मीन्स यूर y22, y33, y23 and y32, these 4 elements will be changed. बस नंबर 2 का एडमिटेंस, बस नंबर 3 का एडमिटेंस और म्यूचुअल जो y23 था और y32 था। y22 जो आपका नया था वो था y24 प्लस y23 प्लस y12। इसमें से क्या चीज रिमूव हो जाएगी? y23 y23 has been removed from the network, so this will remain y24 plus y12. Similarly y13 जो था that is y13 plus y34 plus y23, तो इसमें से भी y23 रिमूव हो जाएगा and y23 और y32 will become 0. This is how Y bus is modified. Either we will be adding a bus or either we will be removing a bus. अभी भी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया हो? हमेशा याद रख लेना दो चीजें, R X। अगर R और X दिया है तो इट इज R प्लस JX, और if with ground तो क्या दिया होता है? R और X दिया है तो इट इज सीरीज, R और X दिया हुआ है तो इट इज सीरीज इंपीडेंस। अगर हम शंट इंपीडेंस दिया होगा तो क्या लिखा होता है? वी हैव डन ए न्यूमेरिकल, किसी को याद हो तो याद दिलाऊं?
तो ये हमेशा याद रखना, यही गलती होगी जो सबसे ज्यादा गलती होगी न्यूमेरिकल में। इट कैन बी आर एक्स, अगर आर और एक्स दिया है इट मीन्स यू आर प्रोवाइडेड ओनली सीरीज इम्पीडेंस, and if B is given that means you have provided shunt admittance। ये हमेशा याद रख लेना। अगर ये B नहीं था, जैसे हमारे इस न्यूमेरिकल में B नहीं दिया था, इसका मतलब कोई भी शंट ब्रांच इम्पीडेंस प्रेजेंट नहीं था। पर क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में जो पहले हमने किया था Y बस दिया हुआ है, Y भी दिया हुआ था, तो दैट इज, तो ये हमेशा याद रख लेना, इफ R and X is given then it is series impedance, and if